Bismillahirrahmanirrahim. The topic is non-linear differential equation of first order. लीनियर यहाँ पे जो लीनियर है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका मतलब क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आर दोज इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल will be 1 and the exponent of the derivative of the dependent variable will also be 1. There will be no product term of the dependent variable with any of its derivative. Moreover, there will not be transcendental function of the dependent variable. So such differential equations are called linear. Here the topic is non-linear differential equation. Non-linear differential equation. So in the non-linear differential equation, we may have the exponent of the dependent variable more than 1. We may have the exponent of the derivative more than 1. Similarly, we may have the exponent of the dependent variable more than 1. So these are non-linear differential equation, and we will discuss non-linear differential equation of first order. Here we denote dy by dx by p, and that is dy by dx will be equal to p, that is we will replace dy by dx by p. There are three methods for solving such equation soluble for p, soluble for y, soluble for x. यहाँ पे सॉल्वेबल पर बाज़ इक्वेशन y के लिए हम सॉल्व करते हैं, बाज़ इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम हल करेंगे इन टर्म ऑफ y, और बाज़ डिफरेंशियल इक्वेशन हम इन टर्म ऑफ x सॉल्व करेंगे. तो थ्री मेथड्स, ये जो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, या तो उसको हम p के लिहाज से हल करेंगे, y के लिहाज से, या x के लिहाज से. The differential equation will be of the form f of x y p is equal to 0. यहाँ पे जो इक्वेशन नज़र आ रहा है ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो p है, इसी p, यहाँ जो p है ये असल में है dy by dx. तो यहाँ जो मसावात है ये डिफरेंशियल इक्वेशन को ज़ाहिर करता है. अब हम इस टॉपिक से यहाँ पे जो फर्स्ट मेथड है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p, तो इसी के लिए हम एक्सरसाइज को हल करते हैं कि p के लिहाज से नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरह हल करते हैं. तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन हल करेंगे. यहाँ पे जो एक्सरसाइज 7.10 है, p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 12 इज इक्वल टू 0. p का मतलब है dy बाई dx. p का मतलब है dy बाई dx, तो नहीं है बल्कि ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. और यहाँ पे जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो फर्स्ट ऑर्डर है. p का मतलब है dy बाई dx. तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये नॉन लीनियर है क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y का जो डेरिवेटिव है इसका पावर 1 से ज़्यादा है. दिस इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. The differential equation involves p in higher degree and is a non-linear differential equation of first order. Factorizing, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 12 है, तो इसी को लेकर हम फैक्टराइजेशन के लिए प्रोसेस करते हैं. अब ये -3 है और ये -4 है, तो फैक्टराइजेशन के लिए हम इसी -3 और -4 का यूज़ करते हुए factorization of this left side will be equal to this one. These are the two factors of this left side. Here the product will be 0, so either first factor will be 0 or second will be 0 here, that is p is equal to 3 or p is equal to 4. Now we will replace p by dy by dx. यहाँ पे जो p है इसको हम dy by dx से रिप्लेस करते हैं और क्वेश्चन को हल करेंगे. इसके अलावा इसी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं p के लिहाज से, द डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी सॉल्वेबल फॉर p इफ इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन p. जब कभी p के लिहाज से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास हो
तो ये फर्स्ट केस है, सॉल्वेबल पावर p वाला है। और इस तरह इस किस्म की क्वेश्चन को हम हल करते हैं, फैक्टराइजेशन मालूम करते हैं और p की जगह हम dy/dx रिप्लेस करते हैं। तो अब इसी p के जगह वी रिप्लेस p by dy/dx here, and also we replace this p by its value. Now here we have this equation. Now separating the variables, so here the variables have been separated. Now integrating both sides, integral of dy is equal to y, integral of dx is equal to x, so 3x plus c. Writing this equation like this one. Here we have the differential equation separating the variables and integrating both sides, integral of dy is equal to y, integral of 4dx is equal to 4x plus c. Now here we have two equations. The general solution of the given non-linear differential equation of first order is this one. This is the general solution of the differential equation. Here we have another question number 2. This is y dy/dx. dy/dx is equal to p, so p square here. This is dy/dx, which is replaced by p. Now we will write this equation as this one. यहाँ पे जो dy/dx था उसको हमने p से रिप्लेस किया। अब वो x माइनस वाई, इसी p को हम x माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला आ गया। अब इन दोनों टर्म से हम कॉमन निकालते हैं, यहाँ भी हम कॉमन निकालते हैं। इस तरह p-1 और यहाँ भी p-1 को कॉमन निकालते हैं। तो हियर वी हैव पार्ट ऑफ टू फैक्टर 0, आइदर फर्स्ट विल बी 0 और सेकंड विल बी 0। सॉल्विंग, सो p इक्वल टू 1 है, यहाँ पे y p इक्वल टू माइनस x है। अब यहाँ पे हमने एक नोट लिखा है, इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट सॉल्वेबल फॉर p, अगर ये p के लिए सॉल्वेबल ना हो, then try it for y, express it as y is equal to f of xp। अगर p के लिए हल नहीं हो सकता है तो फिर हम y के लिए हल करते हैं, यानी हम इसको इस तरह लिखेंगे y is equal to f of xp। if it is not solvable then express differential equation as x equal to f of yp and solve। मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो और वो क्वाड्रेटिक इन p हो तो वो हम हल करेंगे सॉल्वेबल फॉर p। अगर मुमकिन ना हो तो फिर हम उसको लिखेंगे y इज इक्वल टू f ऑफ xp और इस तरह क्वेश्चन को हम हल करेंगे। अगर y इज इक्वल टू f ऑफ xp की शक्ल में अगर हम नहीं लिख सकते हो तो फिर हम इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू f ऑफ yp और इस तरह क्वेश्चन हम हल करेंगे। यहाँ पे जो एक्सरसाइज हम हल कर रहे हैं सॉल्वेबल फॉर p, तो यहाँ पे p की वैल्यू हमारे पास यही है और p हमारे पास है dy/dx। तो अगर हम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करें, इंटीग्रेशन मालूम करें, तो dy का इंटीग्रेशन y है और dx का इंटीग्रेशन x है और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। इस तरह यहाँ पे ये जो सेकंड फैक्टर था, यहाँ जो सेकंड फैक्टर था इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब p की जगह इसकी वैल्यू और वेरिएबल को हम सेपरेट करते हैं और फिर हम दोनों साइड का इंटीग्रेशन लेते हैं। तो y का इंटीग्रेशन y के लिहाज से y² 2 है। इस तरह x का इंटीग्रेशन x के लिहाज से x² 2 है और साथ में कांस्टेंट इंटीग्रेशन है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे 2 दोनों साइड मल्टीप्लाइंग बाई 2 तो इस तरह हमारे पास ये एक इक्वेशन आएगा। अब यहाँ पे एक इक्वेशन यही है, दूसरा यही है, इन दोनों इक्वेशन को हम साथ साथ इस तरह लिखेंगे तो ये हमें गिवन इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन देगा। तो जो गिवन इक्वेशन था वो नॉन लीनियर था, यहाँ पे जो इक्वेशन है ये नॉन लीनियर है क्योंकि यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है इसके डेरिवेटिव का पावर मोर देन 1 है। तो जब डिपेंडेंट वेरिएबल का पावर या इसके डेरिवेटिव का पावर 1 ना हो बल्कि ज़्यादा हो तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर होता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर है और फर्स्ट ऑर्डर वाला है, तो इसको हमने हल किया बाई फर्स्ट केस यानी इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p से और इस तरह ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया। अब ये एक दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और p² - 2p
साइन हाइपरबोलिक -1। हेयर वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन पी। तो अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन पी हो तो वो सॉल्युबल फॉर पी होता है, यानी फर्स्ट केस वाला प्रॉब्लम होता है। इसी को हम अगर लिखना चाहे तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब ये यहाँ पे क्लियरली हमें नज़र है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन पी है। तो क्या है, एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन पी, और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब यहाँ पे a मसावी 1 है, यहाँ पे b मसावी है -2 साइन हाइपरबोलिक x और c मसावी -1। यहाँ पे a की वैल्यू 1 और -2 साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू ऑफ b है और वैल्यू ऑफ c -1 है। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये वाला आता है। अब यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, इसी 4 को जब हम कॉमन निकालते हैं और अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे 2 आता है। ये 2 और ये 2 आपस में बाहर हमने निकाला। अब यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस 1 आ गया। इसी फार्मूले से साइन काज हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 1 है। तो इस तरह लिख सकते हैं, या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू है इसको हम रिप्लेस करते हैं बाई काज हाइपरबोलिक एक्स। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे सम ऑफ 2 टर्म्स है और डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स है, तो हम लिखेंगे, और ये वैल्यू ऑफ p है, आइदर p इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। अब साइन हाइपरबोलिक की जो वैल्यू है, साइन हाइपरबोलिक इसके बराबर होता है, काज हाइपरबोलिक एक्स इसके बराबर, तो दोनों सिमिलर है। साइन के लिए यहाँ पे माइनस और काज के लिए यहाँ पे प्लस होगा। अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेते हैं और इस तरह ये सिंप्लीफिकेशन आ गया। p की वैल्यू e पावर x आ गया। अब ये तो हमने प्लस, इसी यहाँ से हमने साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस काज हाइपरबोलिक एक्स लिया, तो p मसावी e पावर x आ गया। और इस तरह p की वैल्यू हम साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस काज हाइपरबोलिक एक्स लेंगे और इसको इस तरह हम हल करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने इसको हल करना है p इज इक्वल टू ई पावर एक्स। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी इज इक्वल टू ई पावर एक्स, p की वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स है। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट किया और जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रल ऑफ डी वाई वाई के बराबर है और इंटीग्रल ई पावर एक्स है और कांस्टेंट है। अब ये दूसरा, यहाँ से हमने यहाँ पे प्लस और माइनस, तो माइनस यहाँ पे हमने माइनस लिया, साइन हाइपरबोलिक काज हाइपरबोलिक की वैल्यूज आ गई है। अब यहाँ पे देख ले, यहाँ भी एलसीएम है, ये माइनस इंटू प्लस माइनस आ गया, माइनस इंटू प्लस माइनस आ गया। तो सिंप्लीफिकेशन में ये आ गया p इज इक्वल टू माइनस ई पावर माइनस एक्स। अब यहाँ भी वेरिएबल को हम सेपरेट करते हैं, इंटीग्रेशन मालूम, इंटीग्रल डी वाई इक्वल टू वाई, इंटीग्रल ऑफ माइनस ई पावर माइनस एक्स इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई -1 प्लस सी, माइनस माइनस कैंसिल होगा। अब यहाँ पे y की वैल्यू ये है और y की दूसरी वैल्यू यही है, तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, द जनरल सोल्यूशन इज दिस इंटू दिस इक्वल टू 0। इस तरह ये हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया। अब ये एक दूसरा क्वेश्चन है, ये नॉन लीनियर है क्योंकि यहाँ पे p का जो एक्सपोनेंट है मोर देन 1 है, तो ये नॉन लीनियर है और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको हम हल करते हैं सॉल्युबल फॉर p। तो p की वैल्यू हमने निकाला और दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट निकाला। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है, 2 टर्म्स है डिवाइड बाय दिस सिंगल टर्म, तो हमने इसको इस तरह लिखा, सिंप्लीफाई किया, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिवाइजर माइनस सेकंड डिवाइड बाय डिवाइजर, कुछ सिंप्लीफाई किया तो ये सिंप्लीफिकेशन आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो dy है यहाँ पे आ गया और इसी dx को हमने दूसरी साइड पे ले गया। अब यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल सेपरेट है, तो हम इसको किस तरह हल कर सकते हैं, इसको हम इस तरह कंटिन्यू इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हमने इंटीग्रेशन लिया। अब यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन मालूम करने के लिए हम इंक्रीज द पावर बाय 1 एंड डिवाइड बाय द पावर ऑफ 10 का फार्मूला यूज़ करते हैं, इस तरह यहाँ भी यूज़ किया। अब वो कुछ सिंप्लीफिकेशन है, तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन आ गया 3/2 को हम लिख सकते हैं 1 + 1/2, 3/2 हम लिख सकते हैं 1 + 1/2 और ये अपनी जगह पे।
अब यहाँ पे हम कॉमन निकालते हैं, x पावर 1/2 यहाँ पे है, x पावर 1/2 यहाँ है, तो इसको हमने कॉमन निकाला, x पावर 1 यहाँ पे रह गया और यहाँ पे सिर्फ a रह गया। अब यहाँ पे हम स्क्वेयरिंग करते हैं तो y प्लस सी होल स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये प्लस माइनस ख़त्म हो गया, x अंडर रूट स्क्वायर से हमें x मिला और x माइनस ए स्क्वायर से हमें x माइनस ए स्क्वायर मिला। अब यहाँ पे ये जनरल सोल्यूशन है। अब ये क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वेश्चन एंड दिस इज द जनरल सोल्यूशन। इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं, नॉन लीनियर है क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव्स हैं। अब इसी को हम जनरल सोल्यूशन कहते हैं क्योंकि इसी इक्वेशन को हल करते हुए हमने डेरिवेटिव को ख़त्म किया, हमने p को एलिमिनेट किया। तो अब यहाँ पे जो रिलेशन हमें मिला ये जनरल सोल्यूशन है क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव्स हमें नज़र नहीं आ रही है, तो ये जनरल सोल्यूशन है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है, रीअरेंजिंग। जब इसको हम रीअरेंज करते हैं तो ये वाला टर्म अपनी जगह पे, वाई स्क्वायर वाला अपनी जगह पे, बाकी टर्म यहाँ पे है। अब यहाँ से हम कॉमन निकालते हैं, बल्कि यहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले से हम इसको इस तरह लिख सकते हैं और ये अपनी जगह पे आ गया। अब यहाँ पे टू टर्म्स है तो कॉमन फैक्टर को हमने यहाँ पे निकाला तो एक्स पी प्लस वाई आ गया, यहाँ पे 1 बचा। अब यहाँ पे टू फैक्टर का प्रोडक्ट 0, आइदर फर्स्ट फैक्टर 0 और सेकंड 0। इसी फर्स्ट फैक्टर को हमने लिया 0 के बराबर। अब इसको हल करना है, वेरिएबल को सेपरेट किया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रल 1 ओवर वाई डी इक्वल log y, इंटीग्रल 1 ओवर एक्स इक्वल log x प्लस log c विच इज़ कांस्टेंट इंटीग्रेशन। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, कैंसलिंग log, इसी log और इसी log को कैंसिल करें तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। अब यहाँ पे जो दूसरा फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर, तो दूसरा फैक्टर यहाँ पे, ये दूसरा फैक्टर हमने यहाँ पे लिया है, द प्रोडक्ट इज 0, आइदर फर्स्ट फैक्टर इज 0 और सेकंड 0। सो हियर वी सी द सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0। नाउ सॉल्विंग, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इन दोनों को हमने यहाँ पे ले आया, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे जब हम दोनों साइड को इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पे एफ डैश है, यहाँ पे नीचे एफ है, इंटीग्रल ऑफ एफ डैश डिवाइड बाई एफ इज इक्वल लॉग ऑफ एफ, दैट इज लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। इस तरह यही फार्मूला यहाँ भी है, प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन। अब इसी टर्म को हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, ये अपनी जगह पे, इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं और लॉग को हमने दोनों साइड से कैंसिल किया, एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल टू सी। अब जनरल सोल्यूशन क्या होगा, एक रिलेशन यही है, दूसरा रिलेशन ये है, इन दोनों रिलेशन को इस तरह लिखने से हमें जनरल सोल्यूशन मिले। यहाँ पे है y इक्वल टू सी एक्स या y माइनस सी एक्स, यहाँ पे लिखेंगे और इसी सी को यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे और फिर उसी वैल्यू को हम यहाँ पे लिखेंगे एज अ प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन है। ये जनरल सोल्यूशन इस वजह से है कि यहाँ पे p हमें नज़र नहीं आ रहा, बल्कि p को हमने एलिमिनेट किया। थैंक यू।